Yes. Chalo, good evening, all of you. Let us start the numericals from the chapter ray optics. ओके तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मिरर के ऊपर के न्यूमेरिकल्स किए थे, राइट? सो टुडे we are going to solve some numericals based on the concept of lens and lens equation and lens makers equation. Okay, so let us revise it first. ठीक है ना? तो लेंस के अंदर हम देखते हैं कि लेंस इक्वेशन जो है, lens equation gives us the relationship between the object distance, image distance and focal length. So it gives us simply 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. Remember, this is called as the lens equation, but there is a lens makers formula also, or lens makers equation we can say, which is something like this: 1 upon f is equal to n minus 1 into bracket में 1 upon r1 minus 1 upon r2, where r1 and r2 are the radii of curvature, which has to be put here as per the sign conventions. तो साइन कन्वेंशंस में तुमको पता है ऑलरेडी, all the distances to the left are considered to be negative, right positive, upwards positive, downwards negative, focal length of convex lens positive, focal length of concave lens negative. ओके, तो ये सब चीजें जो है वो हमको समझनी है. और इसमें एक बात और कि अगर दो लेंस कंबाइन किए जाते हैं, if suppose two lenses are combined together, then the effective focal length of the lens, final lens is obtained to be simply equal to 1 upon f1, or we can say 1 upon f effective is going to be equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. We can also write this as power, effective power, to be simply equal to p1 plus p2. If suppose the both of the lenses are combined together, they are stick to each other like this. अगर दोनों लेंस इस तरह से चिपके हुए हैं तो उनका जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है, नो डाउट. लेकिन अगर दो लेंस चिपके हुए नहीं है बल्कि थोड़ा डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, इस तरह से, ये एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ f1 है और दूसरा एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ f2 है, और उनके बीच में d इतना डिस्टेंस हमने रखा हुआ है. So the system of these two lenses also behaves like a single lens, but the effective focal length of that is given by this equation. 1 upon f effective is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 into f2. Remember, or even we can express it in terms of power also. तो पावर के फॉर्म में कैसे मिलेगा वही हमको, पावर इफेक्टिव is going to be equal to P1 plus P2 minus D times of P1 into P2. Correct है? So this is expression in terms of power and this is expression in terms of focal length, no doubt. So all these things are to be understood. Okay. और कोई formula है? Yes, one more formula is there for the refraction of the light through single curved surface. अगर एक सिंगल कर्व सरफेस के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन होता है तो हमको मिलता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, और सॉरी, n1 अपॉन वी या n2 अपॉन वी, देखो ठीक से, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r. दिस इज द फॉर्मूला for the single curved refraction through single curved surface, right? तो ये सारी चीजें जो है तो वो हमको आज के लेक्चर के लिए याद रखनी है, ठीक है? इसके ऊपर बेस्ड सारे फॉर्मूले होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स होंगे. Let us try to solve the numericals directly. I hope all of you have the textbook. Just keep it in front of you and be prepared with the pen, paper, so that you can write down and solve parallelly. Yes, we can just try this sixth one. Okay, question number 6th. Just I am reading it. It's based on this lens concept. A convex lens
held at some distance above a 6 centimeter long pencil produces its image of say some size. Okay. On shifting the lens by distance equal to its focal length, it again produces the image of the same size as earlier. Determine the image size. Okay. तो देखो ठीक से, यस, एक फोकल लेंस कन्वेक्स लेंस है. इट इज हेल्ड एट सम डिस्टेंस above 6 centimeter. Okay, can you draw the diagram for this? एक कॉन्वेक्स लेंस है. अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया है क्या? नहीं. ठीक है. Okay. So suppose that this is a convex lens kept here, and suppose the pencil which is 6 centimeter in size, ये इसका पेंसिल का साइज दिया हुआ है. Okay, that is 6 centimeter here. Yes, and it produces its image of some size. Okay, तो इससे हमको एक इमेज मिल रहा है. सपोज यहाँ पे एक इसका इमेज मिलता है हमको, कुछ ना कुछ साइज उसका है. वी डोंट नो हाउ मच इट इज, बट जितना भी हमको साइज मिलता है इमेज का. ओके, सो ऑन शिफ्टिंग द लेंस बाय डिस्टेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ. ओके, मतलब अगर हमने इस लेंस को अगर फोकल लेंथ के जितने डिस्टेंस से अगर शिफ्ट कर दिया तो फिर से हमको उसी साइज का इमेज मिलता है. ओके, सो व्हेन दिस इज पॉसिबल, क्योंकि देखो अगर फोकल लेंथ के जितना डिस्टेंस से अगर इसको शिफ्ट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो 6 से ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, दैट विल गेट चेंज्ड. अच्छा, इसमें भी एक बात है कि अगर इनिशियली ये लेंस जो है वो अगर रियल इमेज बनाता होगा, ये अगर हमने मान लिया, तो उसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से बियॉन्ड फोकस होना चाहिए, तब जाके वो रियल इमेज बनाएगा, नो डाउट. और अगर उसको फोकल लेंथ के से शिफ्ट करने के बाद अगर सेम साइज का इमेज अगर हमको मिलने वाला है, तो इसका मतलब जरूर वो इमेज वर्चुअल होगा. ठीक है ना, वो इमेज उस केस में वर्चुअल बनने वाला है. तो लेट अस अज्यूम द सेकंड सिचुएशन हियर इन सच अ वे दैट सपोज इसका जो फोकल लेंथ है वो ये है. सपोज, ठीक है, ये फोकस है, ये भी फोकस है. ठीक है, तो इस लेंस को अगर हमने फोकल लेंथ कितने डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिया तो मतलब लेंस यहां आ गया और इमेज अपनी जगह पे है फिर भी, और सॉरी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट का साइज भी उतना ही है, लेकिन अभी इमेज जो है वो इधर फॉर्म होने के बजाय यहाँ पे इधर फॉर्म हो जाएगा. करेक्ट है, लेकिन ये दिया हुआ है कि द इमेज साइज ऑब्टेन्ड हियर इज गोइंग टू बी द सेम. तो उतने ही साइज का इमेज हमको यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज होगा और सेम साइड में फॉर्म होगा. ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर अगर देखते हो ठीक से, तो यहाँ पे u का जो वैल्यू है वो हमको पता नहीं कितना है, बट वी कैन जस्ट इमेजिन एट एज u. ओके, इसको अगर हमने u मान लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो ठीक से कि ये जो पॉइंट है, अच्छा, और यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो यहाँ पे v मान लेते हैं. चलो ठीक है, v. यस, लेकिन अभी जबकि लेंस ही शिफ्ट हो गया इधर f इतने डिस्टेंस से, अगर ये लेंस शिफ्ट हो गया तो उस केस में अभी नया इमेज डिस्टेंस कितना बन जाएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं u माइनस एफ. बोल सकते हैं ऐसा, u माइनस एफ. वाई? बिकॉज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैज बीन decreased by f actually in this case, and because the lens itself is shifted by distance equal to its focal length. तो अगर फोकल लेंथ के जितने डिस्टेंस से अगर लेंस को शिफ्ट कर देंगे तो उसकी वजह से जरूर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है जितना भी पहले था तो उससे f इतना कम हो जाएगा, है कि नहीं? f इतना कम हो जाएगा, इसलिए नया फोकल लेंथ नया डिस्टेंस कितना बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u माइनस एफ इतना बनेगा. ये दिख रहा है सबको ठीक से, u माइनस एफ है ये. ठीक है, और ये कितना है, u है. टोटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
before is going to be u, but afterwards it becomes u minus f when the lens is shifted f distance towards the object. And before, in the initial condition, the image distance was v, but here in this case, okay, what will be the image distance in this case here? अगर यहाँ पे हमको इमेज मिल रहा है, okay, first of all, just get the relationship between u, v and f in this case, in the first case here. क्या हुआ वो इक्वेशन? ये जो हमको ऑलरेडी पता है लेंस इक्वेशन, तो उसमें हमको मिलेगा 1 अपॉन u, बट u इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो वी कैन गेट इट एज, सॉरी, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन, ये u जो है वो u नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस q डाल देंगे, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन f. f इज नॉट नोन हियर, ओके. Yes, and hence we can just get this as 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. This is a relationship between u, v and f initially. Okay. And since the image size is okay, so can you find out the magnification in this case? मैग्निफिकेशन कितना होगा इस केस में? चलो ठीक है, मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, विच विल बी एक्चुअली v अपॉन u. ठीक है, अब यहाँ पे v अपॉन u मतलब ही क्या होगा यहाँ पे, ये इसको अगर हमने h2 बोल दिया और ये h1 जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो उसको हम h2 अपॉन h1 मतलब ही h2 अपॉन 6 ऐसा लिख सकते हैं, नो डाउट. ठीक है, अभी सेकेंड केस में देखो क्या हो रहा है. तो सेकेंड केस में देखो, हमको अगर इमेज अगर उतना ही मिल रहा है, ठीक है ना, इमेज का साइज अगर उतना ही मिल रहा है, तो उस केस में, इस केस में भी मैग्निफिकेशन सेम ही होगा कि नहीं? ओनली द थिंग इज दैट द मैग्निफिकेशन विल बी ऑपोजिट इन साइन. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड, but in this case here the magnification will be positive because the image is erect, like, right? And that's why the, but magnification का जो magnitude है वो दोनों तरफ सेम ही होगा. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नया केस में यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 उसको हम बोल सकते हैं, ये m1 और ये m2. तो नया मैग्निफिकेशन जो बनेगा वो भी h2 अपॉन 6 के बराबर ही बनने वाला है, जिसका मतलब है h2 अपॉन h1 वो है. लेकिन ये अभी यहाँ पे v अपॉन u का जो रेशियो है वो भी तो उतना ही होना चाहिए ना जितना पहले था अभी, लेकिन इसमें u जो है वो तो u माइनस एफ हो गया, तो इसलिए यहाँ पे नीचे जो है वो u माइनस एफ आ जाएगा. और नया जो इमेज है वो हमको पता नहीं, बट उसका जो इमेज डिस्टेंस है वो v डैश अगर हमने मान लिया, तो इधर का मैग्निफिकेशन और इधर का मैग्निफिकेशन हमको इक्वेट करना है, they will be the same. So इससे हमको v, u और f के बीच में का रिलेशन और एक रिलेशनशिप मिल जाएगा. m1 इक्वल टू m2 अगर करेंगे ना यहाँ पे m1 इक्वल टू m2, तो जिससे हमको यहाँ पे मिलेगा m1 इधर कितना मिल रहा है हमको v अपॉन u, करेक्ट है, और उस तरफ m2 कितना मिल रहा है देखो ठीक से, इट्स गोइंग टू बी v डैश अपॉन, हियर इट इज u माइनस f एक्चुअली. यस, सो इससे हम v डैश निकाल सकते हैं कि नहीं? तो v डैश कैन बी ऑब्टेन टू बी एक्चुअली इक्वल टू u माइनस f अपॉन u इनटू v. सो दिस इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन v डैश एंड v. मतलब पहले जो इमेज हमको मिला, इमेज डिस्टेंस जो मिला था और अभी जो इमेज डिस्टेंस मिल रहा है, उन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है, तो अभी ये v डैश का वैल्यू तो हमको मिल गया. v डैश मतलब क्या है हम सब समझा ठीक से, ये जो नया इमेज फॉर्म हुआ है, इरेक्ट इमेज जो है उसका इमेज डिस्टेंस है. दिस विल एक्चुअली बी द v डैश हियर, यू कैन से. ओके, तो v डैश हमको मिल गया. अभी इसमें देखो ठीक से कि अगर v डैश और ये u माइनस एफ, इन दोनों के बीच में अगर हमने फिर से ये अगर यूज किया, हमारा इमेज लेंस इक्वेशन जो होता है वो लेंस इक्वेशन अगर यूज किया तो क्या मिलेगा देखो, तो 1 अपॉन v डैश here which is negative again,
so minus v dash we can say, minus 1 upon this object distance, which is going to be minus of u minus f here, which is going to be 1 upon f, that is the focal length, right? तो ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है आगे आगे, जिससे हमको मिलने वाला है 1 अपॉन माइनस वी डैश। अच्छा वी डैश लेकिन वो है नहीं, तो वी डैश ये जो यहाँ पे है वो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो उससे हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन ये वी डैश का वैल्यू उल्टा करके यहाँ पे डाल दो, तो यू जो है वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, u माइनस एफ और v आ जाएगा, करेक्ट। और इधर माइनस ऑफ माइनस प्लस और 1 अपॉन u माइनस एफ एज इट इज, which will be equal to 1 upon f here. Now u minus f is already there in the denominator in both of these here, but v जो है यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए इसको v से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जिससे हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस u प्लस v अपॉन u माइनस f इंटू v, that is going to be equal to 1 upon f. So if we just cross multiply here, then we can get this f into ब्रैकेट में आएगा v minus u is equal to, ये इस तरफ जाके बनेगा u minus f into v, so that we can just get this simplified. So it will be fv minus fu, which is equal to uv minus fv, okay, जिसको ये एफ वी अगर इस तरफ लेके जाएंगे और इस एफ यू को उस तरफ लेके जाएंगे तो 2fu fv इज इक्वल टू fu प्लस uv मिलेगा। ओके, सो जस्ट if we just take u common from this, we can get this f plus v inside the bracket. Okay, but we have to use this equation also. ये जो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ है, इसको भी हमको इसमें यूज करना है कैसे भी करके। और ओके, इससे इसको अगर हमने यूवीएफ से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा यूएफ प्लस इधर मिलेगा वीएफ इज इक्वल टू यूवी। तो इस यूवी के बदले अगर ये वैल्यू डाल दिया यूएफ प्लस वीएफ, तो उससे हमको मिलने वाला है 2fv इज इक्वल टू fu प्लस यूवी के बदले uf प्लस vf। ओके, तो ये एक vf कैंसिल हो गया, जिससे मिल गया fv इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ uf, और f भी अगर कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू 2u। ओके, v इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2u, जिसका मतलब ये हुआ कि v अपॉन u इज गोइंग टू बी 2। अगर v अपॉन u इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब देखो यहाँ पे v अपॉन u 2 हो गया, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 2 हो गया, और मैग्निफिकेशन 2 होने से क्या होगा, h2 अपॉन 6 इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2। तो इसका मतलब अगर h2 अपॉन 6 is going to be 2 means here h2 will actually be equal to 12 centimeter, because 6 is also going to be in centimeter only. इससे हमको h2 मिल गया, देखो 12 सेंटीमीटर, गेटिंग इट। तो सिंपली हमको क्या करना है कि लेंस इक्वेशन यूज करना है दो सिचुएशन में, दोनों सिचुएशंस के अंदर। सबसे पहले हमने ये जो फर्स्ट सिचुएशन था उसके अंदर ये लेंस इक्वेशन यूज किया, जिससे हमको मिला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ओके, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन निकाला फर्स्ट केस में, जो कि v अपॉन यू के बराबर होता है, जिसको हम h2 अपॉन 6 भी लिख सकते हैं। और सेकेंड टाइम का हमने मैग्निफिकेशन निकाला, लेकिन सेकेंड टाइम का हमको इमेज डिस्टेंस पता ही नहीं है, तो उसके लिए हमने उसको v डैश मान लिया। और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकिन पता है, जो कि u माइनस एफ है, क्योंकि हमने लेंस को
लेफ्ट साइड में f इतने डिस्टेंस से लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे u माइनस एफ आ गया u के बदले, और v के बदले v डैश आ गया। और h/6 वो तो वैसे भी उतना ही होना चाहिए क्योंकि इमेज उतने ही साइज का हमको मिल रहा है दोनों केसेस में, और ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन ही सेम हो गया ना दोनों केस में। तो इन दोनों का मैग्निफिकेशन अगर इक्वेट किया तो उससे हमको v अपॉन यू इक्वल टू v डैश अपॉन यू माइनस एफ, इसको यूज करके हमको v डैश का वैल्यू मिल जाता है, जो कि v डैश इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन यू इंटू v। ये v डैश का वैल्यू हमने यूज किया लेंस इक्वेशन में, जो कि सेकेंड लेंस के लिए, मतलब सेकेंड सिचुएशन में लेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमको v डैश और u माइनस एफ दोनों निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, और इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी सेम साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए दोनों निगेटिव बन जाएंगे, जिससे यहाँ पे हमको मिलेगा 1 अपॉन माइनस वी डैश माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ दिस u माइनस एफ विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन f, सो दैट वी कैन जस्ट गेट दिस एज, अभी यहाँ पे v डैश का जो इधर से मिला हुआ वैल्यू है तो वो हमको वहां पे डालना है, तो इससे हमको मिल जाए 1 अपॉन माइनस u अपॉन u माइनस एफ इंटू v, और प्लस 1 अपॉन u minus f as it is, which is going to be equal to 1 upon f as it is. And now in order to take the LCM, here we have multiplied divided by v, so that becomes minus u plus v in the numerator, and denominator still contains u minus f into v as it is, which is equal to 1 upon f. Now here we have just cross multiplied, so that we can just get this f in this side, and f multiplies with v minus u in bracket, which is equal to, ये उस तरफ चला गया तो u minus f into v हो गया। अभी अगर सभी ब्रैकेट्स अगर ओपन कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा एफ बी माइनस एफ यू, और ये अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमको मिलेगा यू भी माइनस एफ बी। ये माइनस एफ बी उस तरफ भेज दिया तो वो एफ बी प्लस एफ बी मिलके 2f बन गया, और ये माइनस एफ यू को इस तरफ लेके आए तो ये यू भी प्लस एफ यू बन गया, ओके, और एफ यू प्लस यू भी बन गया। अभी ये यू भी का जो वैल्यू है वो हमको रिप्लेस करना है इधर से, ये जो इक्वेशन है कि नहीं, इस इक्वेशन को अगर हमने यू बी एफ से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा। ये समझा क्या सबको, ये कैसे आया? ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है। देखो सिंपली हमको क्या करना है, देखो 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f is already there, okay, so if we suppose 1 upon v multiply with u v f, okay, again this 1 upon u is also multiplied with u v f, and this 1 upon f is also multiplied with u v f. see what happens, यहाँ पे v कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, u f, करेक्ट है। यहाँ पे u कैंसिल हो जाएगा और बचेगा भी सिंपली वी एफ, और इधर से f कैंसिल हो जाएगा और बचेगा u v, करेक्ट है। अगर ये तुमको नहीं समझ में आता तो सीधा क्या करो, देखो ठीक से, देखो ये तो पता है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, इतना तो है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है, तो इट बिकम्स u प्लस v अपॉन u v, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन f, एंड देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, ठीक है। तो ये जो नीचे f है वो उस तरफ जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये u भी उस तरफ चला जाएगा, तो हमको मिलेगा fu प्लस fv is equal to uv. This value of uv has to be put here in place of uv, so that we can just get this uv replaced by fu plus fv। तो यहाँ पे ये fu मतलब ही uv uf प्लस vf आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे 2fv का मतलब क्या है, fv प्लस fv है, तो उसमें से एक fv कैंसिल हो गया, एक fv फिर भी बचा हुआ है वहां पे, और फिर यहाँ से ये fu प्लस fu जो है वो 2fu हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे fv इक्वल टू 2fu आ गया, ff कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, तो v इक्वल टू 2u आ गया, और v इक्वल टू 2u का मतलब क्या होता है कि इमेज डिस्टेंस इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो अगर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो 2 है तो मतलब मैग्निफिकेशन 2 हो गया, और मैग्निफिकेशन 2 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 है, तो इमेज डिस्टेंस फिर कितना होगा, जरूर 6 का डबल मतलब 12 होगा। दैट्स इट, इट्स दैट इजी इन दिस वे, ओके। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं आराम से, ओके। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट।
Okay, take the next one. Next question is question number 8 from your textbook. Yes. Question number 8. Just read it once. A point object is kept 10 centimeter away from one of the surfaces of the thick double convex lens of refractive index 1.5 and radii of curvature 10 centimeter and 8 centimeter. The central thickness of the lens is 2 centimeter. Determine the location of final image considering the paraxial rays only. Okay. देखो यहाँ पे लिख से a point object is kept 10 centimeter from the one of the surfaces of the thick double convex lens of refractive index 1.5. मतलब ये सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है और सरफेस से, ठीक है, इसके सरफेस से 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है. सपोज ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट. जबकि लेंस का खुद का जो थिकनेस है वो भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. तो जरूर ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर होगा, नो डाउट, और ये भी ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर ही होगा, नो डाउट, क्योंकि थिकनेस, टोटल थिकनेस लेंस का 2 सेंटीमीटर है. सो ऑप्टिकल सेंटर जो है, ऑप्टिकल सेंटर इज कंसिडर्ड टू बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस 2 पॉइंट्स and that's why it will just divide this 1 and 1 here in this way. चलो, और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि R1 is given to be 10 सेंटीमीटर and R2 is given to be 8 सेंटीमीटर, राइट. एंड ऑल्सो U is, अच्छा U कितना है यहाँ पे बता सकते हो कोई? जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स फास्ट. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर? Is it 10 or something else? I am asking about object distance, Atharva. What is the value of object distance? Okay, most of you are saying that it is 10, but are you thinking about the thickness of the lens itself? ये जो लेंस का थिकनेस है, खुद का थिकनेस, वो 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है एंड 2 सेंटीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के सामने ज्यादा होता है, सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना. इसलिए हमको वो भी कंसिडर करना होगा. और वो 1 सेंटीमीटर अगर हम इस 10 सेंटीमीटर के अंदर अगर ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? टोटल 11 सेंटीमीटर बनेगा. वेरी गुड, ठीक है ना. तो 11 सेंटीमीटर विल बी एक्चुअली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर. सो यू हैज टू बी टेकन एज -11 centimeter, not 10 centimeter here, okay, because the center से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है, ना कि सरफेस का. तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -11 सेंटीमीटर हो गया. लेकिन इसमें यहाँ पे हमको इमेज का डिस्टेंस तो निकालना ही है, नो डाउट, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इमेज का दिया, लेंस का दिया हुआ है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज गिवन टू बी 1.5. That means they are expecting you to use this formula here. लेंस मेकर्स इक्वेशन तुमको यूज करना है, जिसमें R1 और R2 पुट करके और n का वैल्यू पुट करके पहले फोकल लेंथ निकालना है और उसके बाद तुमको ये लेंस इक्वेशन यूज करना है. समझा ठीक से? तो इसलिए यहाँ पे फिर सबसे पहले हम यूज करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, विच इज 1/f इज इक्वल टू n-1 into 1/R1 minus 1/R2. And according to the sign conventions for this convex lens, R1 is going to be positive, whereas R2 has to be taken as negative. So don't forget to take this R2 as -8 here, okay, -8. And if we just put this here, then we can just be able to find that 1/f is equal to 1.5 minus 1 into 1/10
minus 1 upon minus 8, so that we can just get this minus of minus plus here, and we'll be left with 1 upon f is equal to here 1.5 minus 1 मतलब कितना हो गया, वो 0.5 हो गया, right? So this is 0.5 into 1 upon 10 becomes 0.1, and here 1 plus 1 upon 8 comes out to be 0.125, right? So what is this 0.1 plus 0.125? It becomes 0.225, and hence we can get this 1 upon f is equal to 0.5 into 0.225, so that we can get this 1 upon f is equal to, what is this, 225 into 5 कितना होता है, 2 5 are 10 और 25 5 are 125, so 1125, so it's going to be 0.1125, and f will actually just keep it as it is. 1 upon f we want actually, so keep it as it is, 0.1125, 1 upon f ka value. Okay, now we have to use the Lenz equation, which tells us simply that 1 upon v minus 1 upon u is going to be 1 upon f, right? So that we can just put it 1 upon v kept as it is minus 1 upon u. U is to be replaced by this minus 11, so here it is minus 11, and that is equal to 1 upon f is ready made here, which is 0.1125, करेक्ट है? 1 upon f का ही वैल्यू डाल दिया हमने डायरेक्ट, ठीक है? तो अब ये जो बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 1 upon v plus 1 upon 11 becomes equal to 0.1125, and hence if we take this 1 upon 11 in that side, then we'll be able to get this 1 upon v to be simply equal to 0.1125 minus 1 upon 11, so that 1 upon v becomes equal to 0.1125 minus, what is this 1 upon 11, just check out in the decimals, it becomes 0.09, check, correct है कि नहीं? 0.09, इवन अगेन 09, ठीक है, 4 डिजिट तक हम ले लेंगे। तो अगर ये डिफरेंस अगर वर्कआउट करते हैं तो देखो ठीक से यहाँ पे 0.1125 में से 0.0909 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 5 जो 15 बन गया, ये 1 बन गया, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे 1 में से 0 गया 1, और 1 ये 11 बन गया, और ये 0 बन गया, तो 11 में से 9 गया, बचा 2, और 0 में से 0 0 और 0 as it is, so here it is going to be 0.0216, right? This is the value of 1 upon v, actually we want v, so just take the reciprocal of this 0.0216 and just find how much is this 1 upon 0.0216. अगर 1 upon 0.02 भी अगर करते हैं तभी भी 50 तो आ ही जाता है, 50 के आसपास, या इससे थोड़ा कम एक्चुअली आंसर आएगा, ठीक है, इससे 50 से थोड़ा कम। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करें क्या, चेक करो एक बार ठीक से। तो 1 upon 10 प्लस 1 upon 8 कितना आ जाएगा, देखो ठीक से, 1 upon f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 upon 10 प्लस 1 upon 8, मतलब 1 upon 10 प्लस 1 upon 8 विच कम्स आउट टू बी 18 upon 80, तो ये 18 upon 80 मतलब कितना हो गया, 9 upon 40, और ये 0.5 एज इट इज, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं आराम से, तो हमको मिल रहा है 1 upon f इज इक्वल टू 9 upon 80, so f comes out to be actually 80 upon 9, ठीक है, तो जो कि ठीक है, f तो मिल गया। चलो अभी यहाँ पे अगर इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमको मिलेगा 1 upon v इज इक्वल टू 1 upon f, मतलब ही 9/80 माइनस 1 upon 11, जो एलसीएम लेने से क्या मिलेगा, देखो 11 9 जा 99 माइनस 80 अपॉन 880, मतलब 19 अपॉन 880, तो ये 1 upon v बन रहा है, तो v क्या बनेगा
880 अपॉन 19, अगर 20 भी कर दो तो भी वो 44 के आसपास आएगा, तो 46 के आसपास आने चाहिए। हाँ तो बराबर तो है, वही तो आ रहा है हमारा, ठीक है ना। तो इमेज डिस्टेंस जो है इट कम्स आउट टू बी अबाउट 50, तो 50 के आसपास वो हमको मिल रहा है। 50 मतलब वो एग्जैक्ट करेंगे तो कितना बताया तुमने? 46.31। 46.31, 31। ठीक है, सेंटीमीटर अगर वो है तो उस केस में फिर यहाँ से 46.3 सेंटीमीटर दूर इमेज फॉर्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से फिर अगर सरफेस से अगर हमको चाहिए तो उसमें से 1 सेंटीमीटर सिर्फ माइनस करना पड़ेगा, बस खत्म। तो जिससे हमको मिलेगा 45.3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस। अगर सरफेस से चाहिए जैसा कि उन्होंने दिया है तो, लेकिन अभी एक इससे क्वेश्चन के थोड़े रुख से पता चलता है कि दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू यूज द सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला जो है वो 2 बार यूज करने के लिए तुमको मे बी एक्सपेक्ट किया रहेगा। सो अगर वो एक्सपेक्टेड है तो उससे भी आंसर उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं आना चाहिए जो कि एक्चुअली आ रहा है। तो लेट अस ट्राई टू डू इट बाय यूजिंग द सिंगल कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ट्वाइस। ओके, ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमको 2 बार यूज करना है, 2 बार यूज करेंगे। तो देखो ठीक से, सबसे पहले अगर हम यूज करेंगे फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए तो उसके लिए ये जो u है वो 10 बन जाएगा, और r जो है r1 जो दिया हुआ है ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर, और v जो है v हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो विल यूज दिस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u, सॉरी n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। ओके, ये हम यूज करेंगे पहले, जिससे हमको मिलेगा ये देखो n2 मतलब 1.5, v मतलब जो कि हमको निकालना है v डैश उसको बोल देंगे, चलेगा ना, v डैश दैट इज द इमेजिन वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द फर्स्ट कर्व सरफेस ओनली, माइनस n1 will be 1, u will be minus 10, so it is minus 10, and that is equal to n2 minus n1 means 1.5 minus 1 divided by r1, where r1 is nothing but 10 centimeter only. So here it is going to be 10, and r1 is positive, no problem, so that is plus. Okay, so यहाँ पे 1.5 upon v dash plus 1 upon 10 becomes equal to 0.5 upon 10, which makes it 1.5 अपॉन v डैश इज इक्वल टू, ये अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा 0.5 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 विच गिव्स 1.5 अपॉन v डैश इज इक्वल टू, तो 0.5 माइनस 1 मतलब माइनस 0.5 हो गया, तो माइनस 0.5 अपॉन 10, जिससे हमको मिल रहा है, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v डैश हमको मिलता है v डैश इक्वल टू 15 अपॉन 0.5 माइनस ऑफ 15 अपॉन 0.5, मतलब ही वो बनता है एक्चुअली 15 का डबल मतलब 30, सो v डैश हैपन्स टू बी एक्चुअली माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, चेक करो सारे साइन कन्वेंशन वगैरह सब करेक्ट है। u is minus 10 into minus n1, r1 is positive। ओके ठीक है, तो v डैश जो है ये -30 हमको मिल गया, नो डाउट।
अभी ये v डैश जो है, माइनस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लेफ्ट साइड, ठीक है, राइट लेफ्ट साइड में वो इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी अगर हम ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे फॉर द सेकेंड कर्व सरफेस, ओके। तो जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा 30 डिस्टेंस पे यहां से, तो वो ये सेकेंड कर्व सरफेस से कितना डिस्टेंस पे होगा, उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा हमको, जो कि लेंस का थिकनेस है, तो इसलिए वो 32 बन जाएगा। तो नया जो यू डैश बनेगा तो वो 32 बन जाएगा, 32, राइट। That is the new image formed, and that will act as a object for the next curved surface. So अगर हमने फिर से कर्व सरफेस वाला इक्वेशन यूज किया तो हमको मिलेगा n2, देखो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n2 माइनस v, n2 मतलब 1 है जो कि एयर है, अपॉन v मतलब वो तो हमको निकालना है, माइनस n1 इज 1.5 अपॉन u मतलब ये u डैश जो कि माइनस ऑफ 32 यहाँ पे डाल देंगे, जो कि इक्वल टू 1 माइनस 1.5 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय r मतलब r2 हियर, r2 which is 8 and that is also negative, so here it will be minus 8, okay। so इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 अपॉन v माइनस ऑफ माइनस प्लस 1.5 अपॉन 32 इज इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 0.5 अपॉन 8, माइनस ऑफ 8, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए 0.5 अपॉन 8 ही बचेगा वो, जिससे हमको मिलेगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू दिस इज 0.5 अपॉन 8 माइनस 1.5 upon 32, so that you have to multiply divide by 4 here to the first fraction। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2 upon 32 minus here it is 1.5 upon 32, so that 1 upon v becomes equal to here it will be 2 minus 1.5 मतलब 0.5, okay। so 0.5 upon 32 which happens to be, so if we take the reciprocal on both sides, then we get this v equal to 32 upon 0.5, which happens to be 64 centimeter। उससे तो और भी ज्यादा आ रहा है। तो अगर इमेज डिस्टेंस 64 है तो 64 सरफेस से कितना आएगा, वो 63 सेंटीमीटर आएगा। 4 सेंटीमीटर तो कौन से भी एंगल से नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो मे बी द आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक विल बी रॉन्ग। ठीक है, so just take the screenshot of this first। Okay, so let us stop here। The remaining MCQs we'll just do in the next lecture, that is tomorrow। चलो, thank you all of you।